Hi guys, this is my last video for the AS session. I'll officially be signing off by the end of this video. So guys, I just wanted to have a heart-to-heart session with you guys, and first of all, I really wanted to thank you all for the support that you all have given me on YouTube, on my Instagram, and I just wanted to say before I'll give you some last-minute advices. But before that, I honestly wanted to thank you that when I started making the YouTube videos, I just posted them just like that on YouTube. But you guys, the motivation that you guys gave me, your comments and all, especially, on YouTube and on Instagram as well, the notes that I was posting, the content that I was posting. So all of that really motivated me. So honestly, I just wanted to thank you guys for that because it's your motivation that makes me, it's your comments and the motivation that you give me that makes me, just keep on going and making more and more good quality content for you all. And I really hope that, the coming session, I am going to try my best that I give more quality content on YouTube. As far as tomorrow's paper is concerned, guys, I just wanted to say that you guys have done your best, right? Do not panic, do not freak out, because this MCQ paper is an application based paper. It's not a theory paper that you have learned and you will reproduce something in the end, right? It's an application based paper. So I mean, my experience tells me as a student of A levels as well as a teacher that even if you have covered a simple basic topic like free goods or positive normative statement, but if you are not fresh in the exam, if you're freaking out, that anxiety will prevail in your head and it will make you select the wrong answer. Even if you know the concept, still you can select the wrong answer for your MCQ. So it's very important for you to not freak out, for you to not panic. एक चीज़ और मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगा कि कल के एग्ज़ाम के हवाले से कि दो तीन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, ठीक है? कल के एग्ज़ाम में वो ये कि व्हेन यू आर आंसरिंग द एमसीक्यूज़ देयर इज़ नो नीड to answer them in order. I mean, this is something that worked for me. And it really worked for me in my A-level exam, in my A-level economics exam. And what I did was that I basically, if you look at the AS MCQ paper, so it's divided. You can say that it's divided into three categories. In category one, you can classify them as MCQs that are very easy. So in every paper, there will be 10 to 12 MCQs that will be extremely simple MCQs that anyone can attempt it. If you have attended the classes, you will easily be able to score 10 to 12 marks. Scoring 10 marks means that you have scored one third of the paper. You have done one third of the paper right, which means that in the first 10 minutes, आप आराम से one third of the paper सही कर सकते हैं, 10 marks score कर सकते हैं. तो क्वेश्चन 1 2 3 इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है. आप सबसे पहले आपके हाथ में पेपर आएगा, आप सबसे पहला जो काम करेंगे ना वो ये करेंगे कि सबसे ईजी MCQs अटैम्प्ट करेंगे. दैट इज़ something that have worked for me, right? You can also try that in tomorrow's exam. तो सबसे पहले जब आप आसान MCQs को अटैम्प्ट करेंगे ना तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा. तो जब आपने फर्स्ट 10 मिनट्स में 10 11 मार्क्स 12 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर लेंगे. उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको होगा अच्छा यार 10 से 11 मिनट गुजर चुके हैं, मैं 10 11 मार्क्स अपने पक्के कर चुका हूँ, विच मीन्स के वन थर्ड ऑफ द पेपर मैं कर चुका हूँ, ठीक है? फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा. अच्छा चलो यार 10 मार्क्स तो पक्के हो गए. फिर आप सेलेक्ट करेंगे एवरेज MCQs, वो MCQs जो थोड़े से बहुत ईजी भी नहीं होंगे ना बहुत हार्ड होंगे, एवरेज होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा उसके अंदर आपको. ये कुछ आपके समझ लें 11 12 ऐसे MCQs एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, ठीक है? उसमें आप अपना दिमाग लगाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे. ज़ाहिर आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई है, यू विल यूज़ दोज कॉन्सेप्ट्स एवरीथिंग. We've gone through a lot of practice questions. We've also solved a lot of past papers. You have also gone through my YouTube videos, past paper solution videos. So yeah, you'll be solving those past paper. You'll be attempting those questions that are basically on a difficulty level that is the average difficulty level, ठीक है? आप वो अटैम्प्ट करेंगे. उसके बाद आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ना, देखें हर MCQ पेपर में जो हार्ड MCQs होते हैं ना वो आप समझ लें 5 to 6 या मैक्सिमम 7 MCQs ऐसे आते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं. चलें 7 ही मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 से 6 MCQs ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, जिसमें जो अक्सर बच्चों के गलत हो जाते हैं. वरना P1 के अंदर अगर आपने 10 ईयर के पास पेपर्स किए हैं 23 24 स्कोर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो हार्ड वाले MCQs हैं ना वो आपने सबसे एंड में रखने हैं, ठीक है? उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब आप इजी और एवरेज वाले MCQs कर लेंगे और आपको पता होगा कि यार इजी एवरेज MCQs करके मैंने अच्छा स्कोर कर लिया है,
तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा और फिर आप आराम से मुश्किल वाले MCQs भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और देखिए अगर MCQ और जब आप MCQs अटैम्प्ट कर रहे हो ना, तो कभी कभी हमें आंसर नहीं आ रहा होता समझ में, इसका A है, B है, C है, D है, तो डोंट ट्राई टू फाइंड द राइट आंसर, देयर इज नो नीड टू फाइंड द राइट आंसर, find the wrong answer and eliminate that wrong answer. So A is not the answer, B is not the answer. तो आपने देखा होगा मेरे YouTube वीडियोस में जब मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ पास्ट पेपर्स, तो मैं अक्सर कहता हूँ A आंसर नहीं है, B आंसर नहीं है, C आंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली D आंसर है। अब वो D आंसर क्यों है एग्जाम सिनेरियो में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपने राइट आंसर मार्क करना है। आपको 3 गलत आंसर्स पता चल गए एंड यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि ये तीनों गलत आंसर्स हैं, यू मार्क ऑप्शन D एज द करेक्ट आंसर। सही है। तो ये एक और मैं आपको टिप बता रहा हूँ। सही है। कभी कभी MCQs डायग्रामेटिक, अक्सर एग्जामिनर का एम होता है कि आपको डरा दे, ठीक है, एंड द एग्जामिनर ट्राइज टू फ्रीक यू आउट एंड द एग्जामिनर वांट्स दैट, इट्स दिस एग्जाम MCQ पेपर इज नॉट ओनली अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर नर्व्स एज वेल, इट्स ऑल्सो टेस्टिंग यू हाउ वेल आर यू मैनेजिंग योर स्ट्रेस इन द एग्जाम. So that is why it's very important for you to maintain your level of confidence. That is super important. That's super important. If your confidence level goes down, if you freak out, your anxiety will blow your mind away and then you will not be able to solve even the easy answers. That is what I have experienced in my levels as well. So first of all, be relaxed, right, in the exam. Make sure that you solve the easy ones first, then you come to the middle ones, average ones, and then you solve all the difficult ones in the end. Also make sure that for example, questions like minimum maximum prices, tariff diagrams, subsidy indirect tax diagrams, right, comparative advantage questions, these are always coming in the exam. ये आ रहे होते हैं हमेशा एग्जाम में और कल के पेपर में आपके आ भी सकते हैं. उसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव ग्राफ और व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डेटा. तो जो कंक्लूजन्स वाले होते हैं ना, ये आप एंड में करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से कंक्लूजन डिराइव करने के लिए आपको ग्राफ को प्रॉपरली स्टडी करना पड़ता है, अक्सर उसमें टाइम भी लग जाता है. तो इसको कोशिश करें एंड में करें. 1 मार्क का MCQ होगा ना, एंड में ले जाएँ इसको. इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा, अक्सर बच्चे गलती कर रहे होते हैं इन्फ्लेशन के बहुत, रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, प्राइसेस फॉल हो रही हैं. द रेट इज़ फॉलिंग, इट्स बेसिकली डिसइन्फ्लेशन, थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज स्टिल राइजिंग, सो इट्स इन्फ्लेशन एट अ फॉलिंग रेट. सही है. अगर CPI आपका गिर रहा है, दैट इज़, अगर CPI इंडेक्स नीचे जा रहा है, दैट इज़ व्हेन डिफ्लेशन अराइजेस, क्योंकि उसमें फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाएगा ना डिफ्लेशन के अंदर. तो ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है. और when we know that even if the rate of inflation is basically falling at a, there's inflation at a decreasing rate, आपका rate of inflation गिर रहा है, still prices महंगी हो रही, चीज़ें महंगी हो रही है, महंगाई आ रही होगी, इन्फ्लेशन आ रही होगी, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ ही रहा होगा और रियल वैल्यू ऑफ मनी गिर ही रही होगी, ठीक है. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा टेस्ट हो रहे होते हैं. टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर जो लास्ट 6 to 7 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक्सचेंज रेट, BOP, पॉलिसीज़, इनके ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है. तो मेक श्योर गाइज, प्लीज़ ट्राई और डू योर लेवल बेस्ट, मेक श्योर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड. अब तो कल ही एग्ज़ाम है आपका, बट प्लीज़ 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 डू नॉट फ्रीक आउट इन द एग्ज़ाम. सो जाना जल्दी, कल कोई पूरी रात जागने की ज़रूरत नहीं है, वरना पेपर में आपका दिमाग नहीं चलेगा. बट ये आपकी देखें, MCQ को अटैम्प्ट करने की कोई एज सच कोई मैजिक नहीं है कि यार मैं आपको कोई ऐसी टिप या ट्रिक बता दूँ. देयर इज़ नो ट्रिक टू इट. नॉलेज है और उसकी एप्लीकेशन है ना. यू नो द कॉन्सेप्ट एंड यू मार्क द राइट आंसर, दैट्स इट. देयर इज़ नो टिप टू मार्किंग द राइट आंसर if you don't know the concept, right? If you don't know the concept, you will not be able to mark the right answer. So yeah, so the only tip that I can tell you is that attempt the easy ones first, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला जाए. उसके बाद आप एवरेज वाले पे आएँ, उसके बाद आप सबसे एंड में डिफ़िकल्ट वाले MCQs पे आएँ, ठीक है. तो ये मैंने आपको एक एडवाइस देनी थी कल के एग्ज़ाम के लिहाज से, और ऑफिशियली मुझे साइन ऑफ भी करना था, बिकॉज बिकॉज उसके बाद O levels का भी एग्ज़ाम आ रहा है, A2 का भी आ रहा है, तो आई विल ऑफिशियली बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द AS session. And yeah, I really wish you all the best, and thank you so much for supporting. Thank you so much for supporting my YouTube channel. Thank you so much for supporting my Instagram channel. And yeah, that's about it. I wish you all the best. Good luck, guys. Good luck. Seriously, good luck. All prayers to you, and inshallah you will ace it. I'll see you. I will be waiting for your comments. मैं कल Instagram पे स्टोरी डालूंगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना पेपर कैसा हुआ. Okay guys, signing off. Take care.